Yes. So let us start with group 6 today. So as you can see here Y X C H S H T H T H। अब यहाँ पर देखिए जो बचे हुए कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं वो, और इसके साथ आपको पूरे कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स वहां दिखेंगे। वहां पे एनजी से कॉन्सोनेंट डाइग्राफ की शुरुआत हुई और उ पे जो वर्ल्ड डाइग्राफ्स है उसको एंड किया। बट इसके बाद जो सेवेंथ ग्रुप आएगा वहां पे डिफ्थोंग्स आएंगे। तो डिफ्थोंग्स जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे वहां हम आपको ग्लाइडिंग वॉवल्स का इंट्रोडक्शन देंगे कि ग्लाइडिंग वॉवल्स और डिफ्थोंग्स सेम होता है। ठीक है। सो अब यहां पर देखिए वाई एक्स च श थ एंड द। ठीक है ना। सी एच इज च, एस एच इज श, टी एच इज थ एंड अगेन टी एच इज द। जैसे उ देखने में सेम और अलग अलग साउंड, और ई और में देखने में अलग, लेकिन उसका जिंगल और सॉन्ग जो है उसको सेम रख दिया। लेकिन यहाँ पर ये ग्राफिकली इट्स सेम बट द साउंड इज डिफरेंट। तो इसीलिए वहां पर भी जिंगल और सॉन्ग सेम कर दिया उ के लिए। ठीक है ना, सेम है। अब इसी तरीके से टी एच के लिए भी सेम जिंगल एंड सेम स्टोरी इज देयर। एक ही स्टोरी और एक ही सॉन्ग है फॉर टी एच एंड टी एच। ओके। इट बिकॉज एक जैसा दिख रहा है, इट्स ग्राफीम इज सेम बट द फोनीम इज डिफरेंट। ठीक है, साउंड इज डिफरेंट। ओके। सो हियर फॉर ग्रुप 6 y x ch sh th the। So let's understand the story of y. So there's a child sitting at the table eating some delicious food. It's a yellow yogurt, yellow colored yogurt, and the boy is having a spoonful of yogurt and pretending to eat the yogurt. So you have to hold the left hand. On the left hand, you have to pretend that there's a bowl of yogurt, and then you have to eat it. Yeah, 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 yeah. So this is the sound and the action, and the song is for this yo. I like to eat yogurt and bananas. I like to eat yogurt and bananas. I like to eat yogurt and bananas. Yeah, 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 yeah. So this is the jingle. You have to pretend to eat the spoonful of yogurt and say, yeah, yeah, yeah. Now, assuming that this jingle is audible to you. To eat, I like to eat yogurt and bananas. So this is the song. Don't worry, I'll be sharing the song separately with you so that it becomes easy for you to understand the tunes. Now it's X. Now X for जो initial होता है उसमें से तो काफी कम vocabulary बनती है, but yes, with the sounds at the end of the word there are too many X sounds. So your X usually comes at the end, but स्टार्टिंग में भी आता है। जब आप स्पेशल एक्स का रूल देखेंगे अब आपको 6x रूल, मास्टर 6x रूल दिखाई देगा। तो उसमें आपको पता चलेगा एक्स के 6 डिफरेंट साउंड्स होते हैं एंड एक्स इज यूज्ड एट 6 डिफरेंट प्लेसेस इन इंग्लिश स्पेलिंग्स। ओके, जब हम इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स करेंगे, राइट? So yes, so now we'll just go on to the story. There's a child who has fallen and got a hurt in a hand. At the hospital, the doctor takes an X-ray of the hand and then make a x sound. So how does the X-ray is taken? X, 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 x. So this is the sound and the action. Listen to this song. X, x. Take an X-ray. X, x. Take an X-ray. X, x. Take an X-ray. X-ray of my hand. X, x, x.
So you have to pretend that you're holding an X-ray camera and then you're clicking the photo of the hand, taking out the X-ray. Listen to the song. Now next is ch, ch, ch. Now C and H separately give a different sound. C says k and H says h. But when they both are mixed together, they become a digraph and give a ch sound in English and k sound in American English and in different areas also in France and in Italy. And in many terminologies, they also sound as sh. Usually in French, they sound as sh. ठीक है? So it's only the origin difference. आपको ऐसा लगेगा कि मैम क्रिसमस CH क्रिसमस but it sounds as k and but you are saying it's ch. तो yes, there's a spelling rule. वहां पर आप समझेंगे क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वहां से अंतर समझ में आता है. जैसा ओरिजिन होगा मतलब जहां से जो भाषा ली होती है उसके अनुसार वो वर्ड होता है. ठीक है. तो अब इंग्लिश में हमेशा इसे हम च ही पढ़ेंगे. अगर इंग्लिश में कोई वर्ड्स जैसे क्रिसमस हम इसको क पढ़ रहे हैं दैट मीन्स इट्स एन अडेप्टेड वर्ड. सी रोम में हुआ था जीसस क्राइस्ट का जन्म तो वहां का उसमें सी एच को क पढ़ा जाता है. ठीक है. सो इट्स लाइक जहां से ओरिजिन आ रहा है उसके अनुसार हम लेते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर इन इंग्लिश ओरिजिन व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स च. Okay. Now, the story here is there is a steam train moving slowly along the tracks. The wheels go round and round, making a noise. So wheels जा रहे हैं और वो छुक छुक sound कर रहे हैं. So they are making a chuk chuk sound. So the choo choo train comes up. Trains are chugging up the hill. Trains are chugging up the hill. Choo choo. So you have to move your arms at your side like a steam train is moving and saying. So this is the sound and the action. I hope this jingle is visible to you. Trains are chugging up the hill. Trains are chugging up the hill. Now next, shh, shh. When do we say like this to anyone? When somebody is sleeping and you do not want that person's sleep to get disturbed, right? So now, whom do you want that person's sleep should not get disturbed? Either maybe an old person or maybe somebody who is having any disease or maybe somebody who is unhealthy or if it's a very small baby who has just slept with some unhealthy happenings or probably with very lovely irritation, he or she may have just slept. बहुत थक कर परेशान होकर बच्चा अगर अभी अभी सोया है तो मम्मा बोलेगी आवाज नहीं करना. So this is the sound. And same is the story. A mother is trying to get a baby to sleep. She puts a finger onto the lips and whispers, shh, shh, shh. Don't make the sound. So what is the jingle? The jingle says, hush, 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 don't make the sound. Be it quiet as you can be. The baby's asleep and I'm tired out. Shh, 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 shh. अब इश में सीटी बजनी चाहिए तब जाके वो श
sound आएगा. Okay, so that's important. So you have to place your index finger against your lips and say shh, 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 shh. So this is the sound and the action. I hope this jingle is audible to you. As you can be, sleep and not tired. Now the last sound of this group is th and the. This and think. So the for this and think th. So एक ही th है, दिखने में th बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग आ रहा है. एक का आ रहा है द और एक का आ रहा है थ. राइट. सो वन इज वॉइस्ड एंड अनदर इज अनवॉइस्ड. ठीक है. द वन इज वॉइस्ड एंड अनदर इज अनवॉइस्ड. आप यहाँ पर अपना थ्रोट पर अपना हाथ रखें और बोलें दिस और फिर बोलो थिंक. किसमें ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है? यस, द फर्स्ट वन, दिस, द, देयर एंड देन थ्री. जब आप थ्री बोल रहे हो तो आपको वाइब्रेशन तो होगा, बट यहां पर जो आपका एडम्स एप्पल है वहां पर वाइब्रेशन नहीं होगा. जब आप दिस बोल रहे हो तो वहां पे प्रॉपर वाइब्रेशन आपको फील होगा. दैट मीन्स इट्स वॉइस्ड. आपका वॉइस जो है एडम्स एप्पल को टच करके आता है, वो वाला साउंड होता है वॉइस्ड. एंड जो डायरेक्टली एडम्स एप्पल को टच करके निकल जाएगा बाहर, मतलब थोड़ी वहां पे वाइब्रेशन के लिए नहीं रुकेगा, तो वो अनवॉइस्ड हुआ. ओके. सी, वॉइस इज द फुल स्टोरी ऑफ द वाइब्रेशंस. और उस वाइब्रेशंस का जो ऑब्स्ट्रक्शंस है वो हमारे लिप्स, हमारे टीथ ये करते हैं. उसके अनुसार हमारा जो स्वर है उसका उच्चारण होता है. इफ वी डोंट हैव टंग वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक एनीथिंग. इफ वी डोंट हैव अ प्रॉपर वोकल कॉर्ड विल नॉट बी एबल टू टेक आउट द एयर आउट ऑफ द वोकल. मतलब विंड पाइप ही अगर नहीं होगा तो आवाज आएगी ही नहीं. ठीक है. सांस लेने के लिए जो विंड पाइप बाहर अंदर जा रहा है, बट वोकल सिस्टम जो है वो अगर ब्लॉक है, तो जो होते हैं ना, जो बोल नहीं पाते हैं बच्चे, राइट, इफ द चिल्ड्रन हु आर डम, हु आर नॉट एबल टू स्पीक, स्पीचलेस होते हैं जो, तो उनके वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है. जो एयर है वो प्रॉपर वाइब्रेशंस नहीं निकाल पाती है, इस वजह से वो आवाज नहीं आ पाता. वी आर वर्किंग अपॉन द इंक्लूसिव एजुकेशन पार्ट. हम जल्द ही इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड भी कोर्स लेकर आने वाले हैं. हम उस पर काम कर रहे हैं. सो आई थिंक सून शायद आपको उसका भी सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाए. प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ 2026 यू विल मे बी गेटिंग दिस कोर्स नोटिफिकेशन सून. तो हम पूरी कोशिश में हैं. अब ये लैंग्वेज का जो हमारा पीएस ब्रिज लैंग्वेज वाला जो चल रहा है, इसके बाद हमारा कैलकुलस या अर्थमेटिक का जो पीएस ब्रिज कोर्स है वो आएगा, जिसमें हम अर्थमेटिक के वैदिक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स फॉर द किड्स, abacus and main finger abacus and basic multiplication tables की ट्रिक्स, ये सारी चीजें जो हैं हम बच्चों के लिए लेकर आएंगे. और ये ज्यादा दिन के लिए नहीं होगा, ये भी 20 डेज मास्टर क्लास होगा फोनिक्स की तरह. तो हम इसको भी लेकर आएंगे ताकि बच्चे की अर्थमेटिक कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए. और एनवायरमेंट सेंसिटिविटी के लिए भी स्किल डेवलपमेंट पार्ट हम जल्द से जल्द लेके आने वाले हैं, जो एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस होंगी. सो इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड यू ऑल कैन पेन अस. जब भी इसका जो बैनर या पैम्पलेट IOWET के ग्रुप में फ्लैश होगा, अगर आप में से कोई IOWET के ग्रुप में नहीं है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड ऑन कर लेंगे. ठीक है. चलिए. सो ये तो अच्छा एक छोटा सा अनाउंसमेंट. सो ये अब देखिए दिस दिस अब हमारे पास ओनली 2 मिनट्स रुके हैं, तो लेट्स लिसन टू दिस स्टोरी एंड देन वील एंड अप दिस टुडेज सेशन. So for TH, the sound is th and the. It's a hard sound, the soft sound.
So there's a rude clown in the circus, sticks a tongue out and say th the th the th the th the th the th the. तो आपको टंग को बाहर निकालना है for th, and for the you have to put your tongue inside. The th the th the th the th the. नहीं आ रहा है तो थ से कुछ वर्ड बोलो, देखो जीभ थोड़ी सी बाहर निकलती है, थिन. लेकिन द वाला वर्ड बोलो तो जीभ अंदर की ओर जाती है, दिन. राइट. So listen to the song. Did you ever hear a rude clown make this sound and that sound? Did you ever hear a rude clown say ha da da da? So you have to pretend to be a rude clown and say the sound. Okay, so listen to the jingle and then the session gets over. Did you